नो नो बिल्कुल नहीं। गरीबान गरीबान 2 3 4 यार बच्चों ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਯਾਰ। ਓਹੋ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। हर 2 मिनट बाद बिजली 4 रुपए महंगी हो गई है, बिजली 5 रुपए 36 पैसे महंगी हो गई है। अखीर ते लिखा हुआ है एक्स्ट्रा चार्जेस। हाँ यार मैंने एक्स्ट्रा समझ नहीं। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे वो सर जी 41,794 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਬਿੱਲ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਬਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲਮ ਜੇਲਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਊਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। तो क्या करो ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਆਇਆ। किनू ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਆਹਿस्ता आहिस्ता डंडे मारांगा। वायरल नहीं होना, वायरल नहीं होना। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। हम मगर मुझे डंडे क्यों खिलवा रहे हो? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं सही प्रोग्राम कर रहा हूँ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨਮਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। बिल बिल्कुल बहुत आ रहे हैं मगर मैं खुद इस वक्त बीच में हूँ शो के मेरे कितने पास बजे मेहमान प्रोग्राम है खत्म? ओ यार मैं बड़े बड़े ड्रामे वेखे ने, लेकिन यार जरा इन्होंने ड्रामा नहीं किया, एक पागल सी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया था लेकिन फिर भी भाई एक्टर दुनिया ਦੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, हाँ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। क्या मतलब नहीं है ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ, ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ। ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बिल्कुल ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਸਰ? अच्छा ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अपने घरों में किया होगा ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ? हाँ जी ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ 2-3 ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। आई नो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ जी हम बात कर ਸਰ। रहे ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਚ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਿਓ 500 ਕੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ तो ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਣਾ ਬਸ। ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੌਨ ਚੌਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। अच्छा ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸੇ ਲਈ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ। वेलकम बैक टू गपशप। बाबर भाई आपको इस तरह के रिडिकुलस फैंस भी बड़े मिले होंगे जिंदगी में? फ़ैन अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको पता नहीं चलता। कभी खाने से उठा देगा आपको, कभी आपको गाड़ी से उतरवा लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ आपको रूड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एट टाइम्स कंट्रोल करना पड़ जाता है, लेकिन मैं उस सूरत हाल को निकाल लेता हूँ। ऑडेस्ट फैन आपको क्या याद है? फैमिली जब साथ हो ना, जब मेरी बेटियाँ साथ हों, मुझे थोड़ा सा वो मोमेंट थोड़ा सा मेरे लिए होता है, लेकिन मैंने उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तरीके से। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਫੈਨ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਵਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਲਵੋ बता रहा हूँ ना, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पेशेंस के ऊपर। मगर एक चीज और वार भाई, आई डोंट नो आपका इस पे बारे में टेक क्या है, कि मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पे दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं है। मैं उसके अंदर सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आप जहाज में बैठे हैं और आपके साथ कोई आया, आपके फैन, और उन्होंने आया कहा जी सेल्फी ले। अब उस सेल्फी और उस तस्वीर के चक्कर में जो पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब की तस्वीर भी आ जाती है। अब उसके अंदर मुझे लगता है ऐसा कि वो हो सकता है वो नहीं चाहते कि वो तस्वीर में किसी की भी आए, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। तो वो जो प्राइवेसी, और ये कहीं रेस्टोरेंट में भी आपके साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि जो पीछे वाले लोग हैं, और नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज, ये लोगों को अपनी भी सेल्फीज लेने के अंदर एक ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि हम लोग कहीं भी खड़े होकर तस्वीर लेना शुरू होते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि पीछे जो कोई है वो भी कोई और लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि हम इस तस्वीर में आए, या उनकी अपनी प्राइवेसी का मैटर है। आपको कभी ये इस तरह देखिए, आपकी बात को मैं यूँ ले रहा हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। अब हर जगह तो एक्टर नहीं होते, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, हमारी घर की बच्चियाँ, बिल्कुल बच्चे, बूढ़े भी, हम लोग तस्वीर जब बनाते हैं तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है, उस वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शायद मैं और आप उस वक्त ना आना चाह रहे हों, शायद हम में से बाकी जो फैमिली है वो उस पिक्चर में ना आना चाह रहे हों, शायद वो थोड़ी देर पहले कह चुके हो मैं तो थे है ही नहीं, थोड़ी देर में आप वहीं बैठे हो, और भी कई रीज़न। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, तो उस वक्त तो या तो आप उस वक्त को कंट्रोल कर लें, या उसकी जो मोशंस हैं उसके साथ खेल लें, या आप झगड़ा कर लें, तो वो नौबत इस हद तक आ जाती है। क्योंकि फैंस जो होते हैं, मैंने कहा ना, अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ भी हो सकता है उस वक्त। तो हाँ, अब उनको जो पिक्चर्स ले रहे हैं, या जो अपनी फैमिली की किसी स्टार के साथ भी नहीं ले रहे, उनका ये फ़र्ज़ बन जाता है, एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि जब कभी भी आप लोग अपनी पिक्चर बनाएं, ये दौर ऐसा है, आप कोशिश कीजिए उस पिक्चर के अंदर सिर्फ आप आ रहे हो, ना कि किसी की बहन, बेटी, या किसी कोई भी आपसे रिलेटेड आपके लोग आ रहे हो। हाँ, बिल्कुल। अगर हम यूं करना शुरू हो जाए तो बहुत सी चीजें भी कंट्रोल हो सकती है। और खास तौर पे पब्लिक स्पेस जिसे आप कहते हैं ना, आप अपने कमरे में बैठे हुए, ये बात से बड़ा सेंसिटिव है ये वैसे सर। नहीं, मगर मैं तो बड़ा इस मामले में बड़ा सेंसिटिव है कि ये ओपन आपको बात करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको भी जिक्र किया ना, मैं उस वक्त थोड़ा सा होता हूँ जब मेरी बेटियां स्पेशली। नहीं, मैं तो सर बड़ा सीधा हो जाता हूँ। तो मैं, हाँ, वो हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो वो भी टेक्निकली समझाना पड़ता है सर। वो मगर बात पर कई बार होता है ना कि आप अब ऐसे मौके पे नहीं, जिस तरह मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि आपको कुछ चीजें समझनी हम सबको पड़ेंगी, और सिर्फ इसमें सेलिब्रिटी की बात नहीं है। मैंने आमतौर पे देखा है, आम लोग अपनी सेल्फियां ले रहे होते हैं, कभी मॉल के अंदर होंगे, पीछे तस्वीर, फूड कोर्ट में बैठे होंगे, रेस्टोरेंट में बैठे, और तस्वीर पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे किसी ने पूछा कि भैया आप क्या हमारी तस्वीर में बैकग्राउंड में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। और गिवन के जिस कल्चर और सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली हमें यहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे लगता है मॉरली उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वेस्ट के अंदर तो खैर प्राइवेसी लॉज ही इतने हैं कि आप बहुत फंस सकते हैं, आपको सू कर देते हैं। बिल्कुल, खासकर जहाज से तो बिल्कुल सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। अद्धा जहाज से मुंह खोल के सुता होगा, वैसे आधा जहाज आ जाता है। तो ये कुछ चीजें मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ना लोग एड्रेस भी नहीं करते, वे भी वी नीड टू टॉक अबाउट देम। अभी आपने कर तो दी है बात। नहीं, मैं तो कैसे प्लेटफॉर्म से किया जहाँ पे माशाल्लाह सब समझदार हैं, सबको ना इस चीज को, आप सब लोगों को, सबको सेल्फियों का शौक है, और मुंह चाहे मेरे जैसे भी हो मगर सेल्फियां सब लेते हैं।